Let us begin the first chapter, The Lost Child, from the book Moments CBSE. The Lost Child is a story that deals with the psychology of a child. A child's foremost requirement and his necessity is his parents. Parents are the most needed, most essential, and very important people that he needs in his life. And that is why the playthings, the toys, and the tasty eatery or the food, sweets that he wanted from his parents in the beginning of the story and which were not supplied to him, and that were all given to him in the end of the story by a stranger, he doesn't take it. Because ultimately he doesn't want sweets and enjoyable things like toys. But ultimately he needs whom? His parents. उसी के बारे में कहानी है. A festival of spring, बसंत ऋतु का फेस्टिवल. From the wintry shades of narrow lanes and alleys. Alleys क्या होता है? पतला गली. लेन थोड़ा चौड़ा होगा, एलिस पतला होगा. सारे एलिस, सारे लेन्स के अंदर से इमर्ज्ड निकल रहे थे, बाहर आ रहे थे लोग. गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. गेली वर्ड गे वर्ड से बना है, GAY, गे. गे मीन्स हैप्पी एंड गेली मतलब हैप्पीली. क्लैड मीन्स ड्रेस्ड. हैप्पीली ड्रेस्ड मीन्स कलरफुली ड्रेस्ड. If you are dressed in black, it also suggests flat color, dull color. You are not happy. But colorfully, if you are dressed, that means gaily clad. Humanity, human beings. स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सभी लोग आ रहे थे. Some walked, some rode on horses. कुछ तो पैदल आ रहे थे, कुछ घोड़े पे. Others sat, कुछ बुलक कार्ट्स में बैठे हुए थे या फिर बैम्बू कार्ट्स में बैठे हुए थे. ठेला गाड़ी, बैलगाड़ी. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक बच्चा था, वो अपने पापा के पैरों के बीच में से दौड़ा दौड़ी कर रहा था. पैरों के बीच में से मतलब you should not take it like that कि a child is just moving from and in between his legs, his father's legs. पापा के legs के बीच में से नहीं, ऐसा नहीं कि दोनों टांग के बीच में से भाग रहा है. मतलब आसपास से, पैरों के पास, छोटा हाइट है. अपने पापा के पैरों के आजू बाजू दौड़ दौड़ के, उछल कूद के, लाइफ एंड लाफ्टर से भरा हुआ है. ड्रीमिंग ओवर, एकदम चमक रहा है उसका चेहरा खूब खुशी से. क्यों? बिकॉज ही इज गोइंग टू द फेयर, विलेज फेयर. कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स. उस बच्चे के साथ उसकी मम्मी भी थी. मम्मी पापा के साथ बच्चा जा रहा था. तो पापा और मम्मी बीच बीच में उसको बुलाते रहते थे क्योंकि पीछे छूट जाता था. एज ही लैग्ड बिहाइंड मतलब पीछे छूट जाता था, रह जाता था पीछे. वाई? Fascinated by the toys in the shops that lined the way, because the way on which he was traveling, on both side of the path, on both side of the way, in a line, shops had been installed. और उन shops पे खिलौने थे. उन खिलौनों को देख के fascinated हो जाता था और देखते रह जाता था. और उधर मम्मी पापा आगे बढ़ गए, तब उन लोगों को बुलाना पड़ता था. ए चले आए, आए बाबा आए. He hurried towards his parents. दौड़ के फिर जाता था अपने पेरेंट्स के पास. His feet obedient to their call. Feet is the plural of the foot. उसके दोनों पैर, they were very obedient to their call. Their call means his parents' call. His eyes still lingering on the receding toys. चला तो जाता था बुलाने पे, but he kept lingering. He kept looking at those toys. उसकी आंखें अभी भी उन टॉयज पे लगी रहती थी. चला जाता था, ऐसे उंगली पकड़ लिया, ऐसे जा रहा है, लेकिन टॉयज को देखे जा रहा है. रिसीडिंग टॉयज मतलब वो आगे जा रहा है, टॉयज पीछे होते जा रहा है. रिसीडिंग. ही इज प्रीसीडिंग, द टॉयज आर रिसीडिंग. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. उस जगह पे जब वो पहुंचता था ना, where his parents called him, when he reached that spot, he knew very well that very old cold stare of refusal. Stare means like this. ठीक है ना? जैसे ही बोलेगा पापा पापा बाबा बेटा আমাকে কিনে দাও ना बाबा. কি বললি? ठीक है ना? ये cold stare and old stare
पुराना धुराना वही एक ही अंदाज में, कुछ भी मांगो तो ऐसे ही आंसर मिलेगा। गरीब घर के बच्चे को ऐसे ही मिलेगा आंसर, ठीक ना। बैलून डी मांगे आता है बड़ा खेलर जिनिस, चुप चल बड़ी दे। तो जानता था, लेकिन फिर भी अपना दिल के अरमान को दबा नहीं पाया और वो मांग ही उठा, मांग बैठा। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। धीरे से बोला, बाबा हमारे ওটা কিনে দাও না, আমার খুব পছন্द ওটা, ठीक ना, आई लाइक इट, खरीद दो। His father looked at him red-eyed. पापा पूरा आंख लाल कर लिया। In his familiar tyrant's way, एकदम अत्याचारी बाप जैसे होता है ना वैसे। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" किंतु মার হৃদয় তো একটু সফট, আর সেই দিনটাও একটা फेस्टिवलेर दिन ছিল, उत्सव का दिन था। तो मम्मी को थोड़ा दया आ गया बच्चे पे। वो लाल आंख करके नहीं दिखाई, प्यार से उसको बुलाई, मेल्टेड हो गई ना, पिघल गई। बोली कि अपनी उंगली उसको पकड़ाई और पकड़ा के बोली, देखो, गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उंगली पकड़ा के आगे खींच के बोली, देखो, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, वो देखो तुम्हारे सामने क्या दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा था भाई? कोई खिलौना नहीं था। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। उसको सरसों का खेत दिखा रही है। बोलिए वो देखो सरसों का खेत, पीला पीला खेत, कितना प्यारा दिख रहा है ना, कतो सुंदर ना, देखो। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, देखो कैसा मेल्ट करने वाला गोल्ड जैसा दिखाई दे रहा है। गोल्ड है, मेल्ट हो गया है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, देखो कितना इवन लैंड के ऊपर माइल्स एंड माइल्स ऑफ डिस्टेंस तक फैला हुआ, कितना सुंदर सीन है, देखो ना बेटा। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. बच्चे ने जब देखा सरसों के फूल की तरफ, ग्रीन ग्रीन पूरा खेत, उसका ऊपर पीला पीला फूल लग रहा, ऊपर से चादर बिछा दिया है मेल्टिंग गोल्ड का, और वहां पे क्या दिखाई दे रहा है? कुछ ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहा है। उनका विंग्स कितना शोई है, गॉडी है, गॉडी मतलब शोई, शो करने वाला है, दिखने वाला है, अट्रैक्टिव। पर्पल विंग्स, साथ साथ में वहां पे ब्लैक बी और बटरफ्लाई भी उड़ रहे थे, इंटरसेप्टिंग करते हुए, क्रॉस 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 क्रॉस। सब लोग फ्लावर का स्वीटनेस निकालने का कोशिश कर रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चा उन लोगों का पीछा करने लगा। नाउ हिज माइंड वॉज डाइवर्टेड, हिज अटेंशन वॉज डाइवर्टेड। दिस इज हाउ वी डाइवर्ट द माइंड ऑफ अ चाइल्ड। नहीं तो बच्चा मांगने लगता है चांद हमको लाके दो, तो डाइवर्ट करना पड़ता है। अब वो डाइवर्ट हो गया, इन ड्रैगन फ्लाइज का पीछा करने लगा। विथ हिज गेज, देख देख के, ध्यान ध्यान से देख देख के उनका पीछा करने लगा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और जैसे ही उसमें से एक आया थोड़ा रेस्ट करने के लिए, कहीं बैठा ड्रैगन फ्लाई या बटरफ्लाई, ये दौड़ के गया उसको पकड़ने के लिए, कोशिश किया, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन नहीं पकड़ पाया। वो बटरफ्लाई अपना पंख को फ्लैपिंग करते हुए, फड़फड़ाते हुए, फ्लटरिंग करते हुए उड़ गया। When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call. Come child, come on the footpath. और एक मोमेंट आया जब वो पकड़ ही लिया था, जैसे ही पकड़ लिया उसके साथ खेलेगा, तैसे ही मम्मी ने फिर बोला, कम चाइल्ड कम, आए बाबा, आए सोना, चले आए, फुटपाथे आए, और खेलते हुए ना चल। He ran towards his parents gaily and walked abreast of him for a while. और उसके बाद फिर से वही मम्मी पापा के पास दौड़ के चला गया और उनके आसपास में आजू बाजू में चलते चलते आगे बढ़ा, गेली, हैप्पीली, खूब हैप्पीली। फॉर अ वाइल बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, थोड़ी देर तक तो चला लेकिन फिर पीछे रह गया। चाइल्ड है ना, उसको तो जितना ब्यूटी होगा, जितना अच्छा अच्छा चीज होगा, सब कुछ अट्रैक्ट करेगा उसको, अट्रैक्ट हो जा रहा है वो। Soon left behind, attracted by the little insects and worms, इस बार छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा, वो कलरफुल worms जमीन में उसको दिखाई दिया, उसको देख के रुक गया। Along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, जिन कीड़े मकोड़ों को, worms को देख के वो रुक गया था, वो सारे कीड़े मकोड़े worms मिट्टी में से बाहर निकल के आए थे। मिट्टी में होल होता है, होल में से निकल निकल के बाहर आके they were all enjoying the sunshine. It was a wintry evening, na? Not wintry actually, it was a spring. So during the spring season we can still experience some chill,
ठंडा ठंडा फील करते हैं हम लोग. कम चाइल्ड कम, उसके पेरेंट्स फिर से बुलाए. Called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well, he ran towards them. इस बार उसके मम्मी पापा एक ग्रोव में घुसे, बगीचा में. वहां बहुत बड़ा सा एक पेड़ था. उस पेड़ के नीचे एक कुआं था. कुआं के किनारे किनारे सीमेंट का वो हाँ बनाया हुआ था, एम्बैंकमेंट टाइप का. थोड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया था, उस पे लोग बैठ सकते हैं. सो हिज पेरेंट्स वेर एंजॉइंग रेस्ट, पीसफुल रेस्ट. एंड while they were enjoying the rest, they called their son. Come child, come, आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ. फिर दौड़ के गया उन लोगों के पास. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही वो अंदर घुसा बगीचा में, पेड़ के नीचे जैसे ही गया, कितना खूबसूरत फूल. पेड़ों पे जो फलों के पहले फूल होता है ना, स्प्रिंग टाइम में फूल लग जाता है. We can see outside on the streets in Kolkata that it is the time of spring. So most of the mango trees, they are burdened with, they are full of flowers. जो फ्रूट आने के पहले फ्लावर्स होता है वो आ गया हल्का हल्का, मंजरी जिसको बोलते हैं. As he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. जब मम्मी पापा के पास गया तो मम्मी पापा उसको ध्यान में नहीं थे. उसको क्या ध्यान में था? फूल गिर रहा है ऊपर से. जल्दी जल्दी फूल इकट्ठा करने लगा, चुनने लगा. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents. तभी उसको कबूतर का cooing सुनाई देने लगा. ठीक, कबूतर गुटर गू कर रहा है. और फिर दौड़ के गया अपने पेरेंट्स के पास, शाउटिंग करते हुए. और क्या चिल्लाते हुए गया मम्मी पापा के पास? द डव, द डव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. जैसे डव डव बोला, बाबा वही देखो वही देखो. तो जैसे बोल रहा है, देखो देखो पापा, देखो वो कबूतर है देखो, तैसे उसके हाथ से सारा फूल गिर गया. मतलब फ्रॉम वन टू अनदर हिज माइंड इज डाइवर्टेड, one thing to another. Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree. And gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. इस बार उसके मम्मी पापा उसको बुलाए, क्योंकि बच्चा एक बैनियन ट्री के किनारे किनारे, उसका वो जो रूट नीचे गिरा हुआ रहता है ना, उससे किनारे किनारे दौड़ दौड़ के खेल रहा था खूब मजे से. मम्मी पापा उसको बुलाए और बुला करके सरसों के खेत में से नैरो फुटपाथ, विंडिंग फुटपाथ पे से जाते जाते उसको लेके आगे बढ़े और लेट टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड. और फेयर ग्राउंड में जो रास्ता जाता है वहां चले गए. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. Throngs means crowds of the people. जैसे ही बच्चा नजदीक गया, देख रहा है कि गांव की तरफ जहां पे मेला लगा हुआ था, जितने भी रास्ते आ रहे थे सारे रास्ते में भीड़ मचा हुआ है. Converging to the whirlpool of the fair, and everybody was getting crowded. They were all centering to the village fairground. Whirlpool, whirlpool क्या होता है? ऐसे गोल गोल नाचना, उसको बोलते हैं whirlpool. मतलब क्राउड एकदम ऐसे मूविंग क्राउड दिख रहा था, इधर से उधर मूव कर रहा है, उधर से इधर मूव कर रहा है. And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और अंदर घुसने से ही वो एकदम फैसिनेटेड हो गया, एकदम उत्साहित, उत्तेजना से भर गया. फैसिनेटेड, एक्साइटेड. कितना कंफ्यूज्ड वर्ल्ड था वो. बड़ा उम्रदार आदमी लोग होता है ना, ऐसा कंफ्यूजन से डरता है वो लोग, घुसना नहीं चाहता है भीड़ में. छोटा बच्चा लोग को बहुत मजा आता है. क्या हो रहा है यहाँ, भीड़ क्यों, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, वहां क्या हो रहा है, सब देखना चाहते हैं, सब देखना चाहेगा. A sweet meat seller hogged. सबसे पहला उसको मिला कौन? मिठाई वाला. स्वीट मीट, मीठा, मिष्टी, वो मिला. वो हॉकिंग कर रहा था. ऐसा जो एक तो छोटा सा स्टॉल लगा के बेचते हैं उसको हॉकर बोलते हैं. तो वो हॉकिंग कर रहा था, चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी, ले लो भाई ले लो. ठीक है ना, ऐसे बोल रहा था. एकदम एंट्रेंस के कॉर्नर पे ही ऐसा हो रहा था, घुसने का, जो मेला में घुसने का कॉर्नर में ही. और वहां पे भीड़ एकदम जोरदार प्रेसिंग कर रहा था. भीड़ एकदम काउंटर पे, जहां पे पैसा देते हैं और डिलीवरी लेते हैं सामान का, बहुत भीड़ था वहां. एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स. कितना सुंदर से सजा के रखा था एकदम. पांतुआ, लाल मोहन, रसगुल्ला वाइट वाइट, लाल लाल गुलाब जामुन, काला काला जाम, खीर कदम,
ग्रीन कलर का बर्फी, मुंह में पानी आ रहा जाता है। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सबका ऊपर में हल्का सा वो सिल्वर का एक ठो फॉइल पेपर ऐसा बिछा देते हैं मिठाई पे, सुंदर बनाने के लिए सजा देते हैं, उसका कोई टेस्ट वेस्ट तो होता नहीं है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, वो बच्चा एकदम खुला आंख से देख रहा था, हाँ मिस्टी, ठीक है, एंड हिज माउथ वाटर्ड, मुंह में पूरा पानी आ गया। बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, बर्फी उसका फेवरेट था। उसने धीरे से बोला, ओ माँ गो माँ, ओ बाबा बेटा किने दाओ ना, मैं आई वांट दैट बर्फी, खरीद दो ना वो बर्फी। मर्मर्ड, धीरे धीरे बोला, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer he moved on. इच्छा तो था खाने का, लेकिन उसको ये भी पता था पहले से ही कि उसके पेरेंट्स उसको खरीदेंगे नहीं, पापा उसके बोलेंगे लालची कहेंगे पेटू, ठीक ना, सब समय खाई 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 करे, चल खरीदेगा नहीं लोग, इसलिए बेचारे इंतजार नहीं किया और चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, आगे बढ़ा तो एक फूल बेचने वाला था, वो भी हॉकिंग कर रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, उसके पास माला था, क्या चीज का माला, गुलमोहर का माला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, एकदम अनकंट्रोल्ड हो गया था, खींचा हुआ जा रहा था, ठीक है ना, डोर की तरह से उसी तरफ। He went towards the basket where the flowers lay heaped. अब उस टोकरी के पास चला गया जहां टोकरी में बहुत सारा फूल रखा हुआ था कलरफुल। एंड हाफ मर्मर्ड, और धीरे से मरमर करके बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, हमको वो खरीद दो ना पापा, खरीद दो। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई देम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, वो लोग बोलेंगे ए छोड़ो वो लेने लायक नहीं है, बेकार है, चीप है, फालतू है, क्वालिटी अच्छा नहीं है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसीलिए वो कुछ इंतजार नहीं किया, चुपचाप आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे गया तो देखता है क्या, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक आदमी खंभा लेके खड़ा है और खंभा में तरह तरह का बलून बांध के रखा हुआ है, अलग अलग कलर का, और सब बलून उसी से लहरा रहा है, उड़ रहा है। Child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. सारे बैलून का कलर्स देख करके इतना इंटरेस्टेड हो गया कि उसको इच्छा हो रहा था कि पूरा का पूरा खरीद लें, हम पूरा ले लें। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys, so he walked on farther. वो नहीं रुका, आगे बढ़ गया, जानता था जैसे ही मांगेंगे पापा क्या बोलेंगे, बूढ़ो बॉयस है यार, बैलून नहीं खेल, चल बेटा आगे बढ़, ठीक ना, बुढ़ा हो गया, इतना उम्र हो गया, अभी बैलून खेलेगा, इतना बड़ा लड़का बैलून खेलता है, छोटा बच्चा लोग खेलता है।